نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں جہیز کے عنوان سے اور دیگر رسومات کے عنوان سے، بہت دلچسپ مکالمہ ہے، اور ان مکالموں کا مقصد صرف ڈرامہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو رول ادا کر کے یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ امت مسلمہ اپنے سماج اور اپنے معاشروں کو خرافات اور رسومات کی گندگیوں سے نکال کر کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں کیسے معاشرے کو ڈھال سکے، پیش کریں گے یہ طلبہ کرام محمد ارشد، محمد صدیق، محمد انس وغیرہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی عبدالحمید خیریت ہیں؟ ہم غریبوں کی بستی میں آپ جیسے بڑے لوگوں کو قدم دیکھ کر اپنی نگاہوں پر یقین نہیں ہو رہا ہے۔ ارے جناب، دراصل بات یہ ہے، یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، اس کے رشتے کے لیے لڑکی دیکھنے کی غرض سے آپ کے شہر میں حاضری ہوئی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو پھر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ 3-4 لڑکیوں کے متعلق پتہ چلا ہے، انہی کے والدین سے بات کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر وقت ہو تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ کیوں نہیں، پورا گاؤں ہی اپنا رشتہ دار ہے، آئیے چلیے۔ ارے حاجی عبدالغنی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے، تشریف لائیے اور کہیے کیسا نہ ہوا۔ یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں اور یہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ حضرات آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا بیٹھیے۔ ادھر بھی کرسی جمانا۔ لڑکا ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، 2024 میں انجینئرنگ کمپلیٹ کی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد سرکاری نوکری لگ جائے گی۔ اور آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ شادی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ منگنی سے لے کر بارات اور نکاح سے لے کر رخصتی تک ہر کام بڑی دھوم دھام سے ہوگا۔ ہم لوگ الحمدللہ پرانی سوچ والے نہیں ہیں بلکہ زمانے کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ آپ تو لڑکی دکھائیے اور پھر لین دین، باراتی کی تعداد اور کھانے کی بات کر لیتے ہیں۔ میں لڑکی تو دکھاؤں گا لیکن آپ کی یہ لین دین والی بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ لڑکی ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھی ہوئی ہے، دیندار، نیک سیرت اور نیک طبیعت ہے، نماز کی پابندی اور پردے کا اہتمام کرنے والی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اپن غلط جگہ آ گئے، کیونکہ یہاں سے کچھ ملتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر یہاں رشتہ ہو گیا تو بارات میں آنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تم لڑکی دیکھنے آئے ہیں یا کسی لونڈی کی سودا بازی کرنے آئے ہیں؟ مجھے تو تمہارے ارادوں میں نیکی نظر نہیں آ رہی۔ پاپا، مجھے تم کسی ایسے گھر کا داماد مت بنا دینا جہاں کی لڑکیاں وہی پرانی سوچ، پردے میں رہنا اور فنکشن میں نہ جانا، یہ سب میرے اسٹینڈرڈ کو خراب کرتا ہے۔ ارے بیٹا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ تیرا باپ ابھی زندہ ہے، کیا کمی ہے اپنے پاس؟ مالدار سے مالدار گھرانے میں تیرا رشتہ کراؤں گا۔ ارے پرانی سوچ والوں کے یہاں تو جانا ہی نہیں، بہت دماغ خراب کر دیا۔ ایک تو راستے میں روڈ اتنا خراب اور اوپر سے موڈ خراب۔ ارے تو چلو نا، سب مون خراب کر دیا، سفر کا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ ایک لڑکی اور ہے ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کی، لیکن وہ بہت بڑی پارٹی ہے، تمہارا مقصد وہاں ہو سکتا ہے۔ لڑکی بھی خوبصورت ہے، خاندان بھی اونچا ہے اور سوچ بھی تمہاری جیسی ہے۔ ہاں چلو کہیں اور چلتے ہیں، میرا بھی دل یہاں سے اچاٹ ہو گیا، چلو چلو۔ ارے چودھری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے چودھری صاحب، یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، اس نے اسی سال انجینئرنگ مکمل کی ہے اور بہت ہی جلد سرکاری نوکری لگنے والی ہے۔ اسی کے رشتے کے لیے لڑکی دیکھنے نکلے ہیں۔ سنا ہے ماشاءاللہ آپ کے یہاں لڑکی ہے۔ یہ تو اس ناچیز کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمارے پاس تو بڑے مولانا بھی ہیں، انشاءاللہ یہ نکاح پڑھا دیں گے۔ اگر یہ رشتہ پکا ہے تو کچھ اگلا پروگرام طے کر لیں، کچھ لین دین کی باتیں ہو جائے تو بہتر ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی بس، منگنی میں کیا دیں گے، جہیز میں کیا کیا رہے گا، بارات میں کتنے لوگ لانا ہے، کھانے میں کیا بنایا جائے۔ واہ بھائی واہ، آپ لڑکی کا رشتہ کرنے آئے ہیں، بھیک مانگنے آئے ہیں؟ مولانا صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، جب لڑکی کا نکاح ہوگا تو جو رسم رواج سماج معاشرے میں چل رہا ہے وہ تو کرنا پڑے گا۔ منگنی کی رسم ہلدی، جوتا چھپائی کی رسم، چوکھٹ کی رسم، باراتیوں کا کھانا، یہ تو سب کچھ کرنا پڑے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چودھری صاحب، میں تو آپ کو بہت سمجھدار اور لائق شخصیت سمجھتا تھا، لیکن آپ کے نظریے اور خیالات نے تو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آپ جیسے صاحب ثروت اور مالدار لوگ کیسے غربا اور یتیموں کی زندگی کو دوبھر کرتے ہو۔
चौधरी साहब, ये मौलाना ने बोला है ये अच्छा है, जो अपने जी में आए कर लो और किसी बड़े मौलवी से निकाह पढ़ा लो ताकि हमारे सारे काले करतूतों का जवाब निकल जाए। अरे तो मौलाना मंगनी करने में हरज क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि रिश्ता निकाह के मौके पर मंगनी की हैसियत सिर्फ एक वादा निकाह की है। इस पर रिश्तेदारों को जमा करना, बाकायदा दावत चलाना, हदाया का लेन देन करना, मर्द औरतों का जमा होना, यह सब नामुनासिब है और इस पर मजीद बेपर्दगी का होना यह सब नाजायज और हराम है। मेरे भाई, अब तो मंगनी का मतलब हो गया है लड़का लड़की का आपस में बातचीत करना, व्हाट्सएप पर चैटिंग करना, और कुछ जगहों पर तो ये रिवाज है कि रिश्ता पक्का होने के बाद लड़की को ससुराल वाले अपने घर काम के लिए बुला लेते हैं, जबकि वो लड़की अभी अजनबी होती है। दोनों का निकाह नहीं हो जाता जब तक दोनों का आपस में बातचीत करना नाजायज और हराम है। और आप कह रहे हैं कि क्या हरज है? अरे मौलाना, बारात के बारे में क्या ख्याल है? देखिए जनाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तो बारात गैर मुस्लिमों की इजाद करदा रस्म है। पहले जमाने में अमन न था, डाकुओं का खतरा लगा रहता था, इसलिए दुल्हा दुल्हन की हिफाजत के लिए एक काफिले की जरूरत पड़ती थी, तो हर घर से एक आदमी ले जाते थे ताकि इत्तिफाक से अगर कोई हादसा पेश आए तो एक घर से एक ही बेवा हो। अब तो सहूलत के असबाब और अमन के हालात हैं, अब तो ये चीज सिर्फ एक रस्म के तौर पर रह गई है। अपने घर तो 10 लोगों में 1 किलो गोश्त लाते हैं और शादी में हर लुकमे में बोटी चाहिए। घर में चाहे पंखा भी ना हो, शादी में कूलर चाहिए। नए नए नखरालू लोग आते हैं, बारात पहुंचाई जाती है। दुल्हन को लाने के लिए अगर चंद अफराद 2-4 लोग चले गए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, हाँ या ना में जवाब देना। जी हाँ। क्या मौजूदा निजाम बारात लड़की वालों के लिए एक बोझ नहीं है, जिसमें जबरदस्ती 10-20 छोटी बड़ी गाड़ियां भरकर साहिब खाना के यहाँ डेरा डालते हैं? फिर जाने वालों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बड़े का गोश्त नहीं चलता, तो किसी को चावल से परहेज है और लड़की के बाप के लिए कयामत बर्पा कर देते हैं। लेकिन मौलाना, ये बात तो लड़की के बाप की तरफ से आती है कि जितने चाहे उतने मेहमान ले आओ, लड़के वाले की तरफ से कोई मुतालबा नहीं होता है। जनाब आली, ये तो आप कह रहे हैं, आपने कभी गौर किया कि इसकी नौबत क्यों आई है? समाज और माशरे ने हालात ही ऐसे बना दिए हैं कि लड़की के बाप को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। और मुझको तो ऐसा लगता है कि आपको पैसों का ज्यादा ही करना नजर आता है। रुपयों की गर्मी की वजह से आप ऐसा कह रहे हैं। आप जैसे या चौधरी साहब जैसे पैसों वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सवाल उस गरीब मजदूर कम पैसे वाले बाप से पूछो जिनकी हजारों बेटियां सिर्फ इस वजह से घर में बैठी है कि उनके बाप शादी का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे अरे, ये तो वही लोग हैं जो मेरे घर आए थे रिश्ता लेकर, लेकिन जब इन्हें पता चला कि मेरे घर इनको भीख मिलने वाली नहीं है तो फौरन चौधरी साहब के घर का रुख कर लिया। अरे तो मौलाना, ये हल्दी लगाना कैसा है? अरे बाबा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझाऊं? तुमने हमेशा पेंट में पेशाब किया है ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग और अक्ल आधे पाक और आधे नापाक लग रहे हैं। मेरे भाई, ये हल्दी किसी जमाने में लड़की को बतौर खूबसूरती लगाई जाती थी। तिब्बी एतबार से लड़का लड़की इसको कई दिन तक बतौर दवा इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से बदन नरम और मुलायम होता है। आज इसकी जगह क्रीम और पाउडर आ गए हैं। लोगों ने इसको एक रस्म समझ लिया है और बड़े अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा ने इसको इख्तियार कर लिया है। तो मौलाना, फिर तो जूते छुपाई की रस्म भी मना होगी। मेरे भाई, ये क्या होती है? निकाह के बाद दुल्हन के भाई या बहन भाई, यानी हमारी इस्तिलाह में साला या साली में से दूल्हे का कोई जूता छुपा लेते हैं, फिर दूल्हे से अच्छी खासी रकम का मुतालबा करते हैं, वरना वो जूते कुर्बान हो जाते हैं। देखिए जनाब, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिही, यानी किसी भी मुसलमान के लिए किसी का माल उसकी रजामंदी के बगैर हलाल नहीं है। नीज ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका है, मुश्किकाना रस्म होने की वजह से इसको छोड़ना लाजिम है। मौलाना साहब, जाते जाते एक सवाल मैं भी कर लूं अगर इजाजत हो तो? जी पूछिए। मौलाना, जहेज पर भी कुछ रोशनी डाल दो। इसका जवाब तो मेरा शागिर्द देगा, बेटा सवाल का जवाब दो। हाजी साहब, शरीयत में जहेज कोई लाजमी चीज नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जहेज देने का अमूमी रिवाज नहीं था। मौलाना, आप ये क्या कह रहे हैं? जहेज के बारे में थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के निकाह के वक्त जहेज का तज़किरा मिलता है। सुनन नसाई की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जहेज में एक पल्लूदार चादर, एक तकिया और एक मशकीज़ा दिया था, जिसमें इज़खिर नामी घास भरी हुई थी। और मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि एक लिहाफ, एक गद्दा,
2 चक्कियां, 1 मशकीजा और 2 मट्टी के घड़े अता किए। और मवाहिब लदुनिया की रिवायत में 1 चारपाई का भी जिक्र मिलता है। हाजी साहब, आप जिस जहेज की बात कर रहे हैं उसमें उलमा की दो राय है। एक तो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से ही सामान अता किया था। दूसरी राय ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाप होने के साथ साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरपरस्त भी थे। तो ये सारा सामान आपने हजरत अली के माल से उनका घर बसाने के लिए दिया था। और अगर चलो मान लो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही जानिब से दिया था, तो देखिए वो सामान कितना मुख्तसर और सिर्फ जरूरी अशिया पर मुश्तमिल था और सिर्फ हुजूर ने दिया था। हमारे माशरे में फैलती हुई जहेज की जहरीली हवाएं जिन पर आपकी नजर क्यों नहीं आती? लड़के वालों का जहेज का मुतालबा करना और जो लोग ये कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, वही कम जहेज लाने पर लड़की को निकाह के बाद तंग करते हैं कि तेरे माँ बाप ने तो वैसे ही हमको पकड़ा दिया। फिर शादी में शिरकत करने वाला हर आदमी कुछ न कुछ जहेज लेकर आता है। ये कहाँ से सही है? खुद बाप अपने आप को कर्ज के बोझ तले दबाता है कि ये सब चीजें हमारे समाज और माशरे को कर्ज, सूद और गुनाहों की दलदल में नहीं दसा रही है। चौधरी साहब, अगर सिला रहमी हमदर्दी का इतना ही शौक व जज्बा है तो लड़कियों के लिए विरासत जायदादों में उनका हक जो शरीयत ने मुतय्यन किया है क्यों नहीं देते? अगर अपनी बेटियों से हकीकत में मोहब्बत करते हो तो वसीयतनामा लिख कर रखो उन बच्चों के नाम जो तुम्हारे इंतकाल के बाद सारी जायदाद पर कब्जाधारी हो जाते हैं और बेटियों को उनके हक के विरासत से महरूम कर देते हैं। बल्कि अगर किसी बहन ने मुतालबा कर लिया तो घर में उसकी एंट्री भी बंद कर देते हैं। हाजी साहब, चौधरी साहब, अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो और मालो दौलत के लिए अपनी चौधराहट और मालदारी के नशे में मुआशरे और समाज को कर्ज, सूद और गुनाहों की दलदल में मत फंसाओ। मौलाना, हमारा इसमें क्या कसूर है? अरे चौधरी साहब, आपने कभी गौर किया है आज मुतवस्सित तबका, मिडिल क्लास और गरीब घराने की लड़कियां क्यों रिश्ते निकाह से महरूम हो रही है? जब से मालदारों ने अपने माल के नशे में जहेज की लानत को बढ़ावा दिया और अब तो मालदारों की निगाहें भी सिर्फ अमीर घरानों की लड़कियों पर ही रह गई। गोया के गरीब घराने में लड़की की पैदाइश जुर्मसी बन गई है। वाह जी वाह हजरत, आपने तो हमारे कान के सारे कीड़े ही झाड़ दिए, बल्कि हमारे दिमाग के खन्नास को भी जला दिया। हम आपसे वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि रसूम और रिवाज और गैर शरई तरीकों से अपने आप को दूर रखेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि समाज के रस्म और रिवाज से हटकर खालिस सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दीनदार घराने में शादी करूंगा इंशाअल्लाह। अरे नेकियों और पूछ क्या, हम ही ये रिश्ता जो अब से पहले अपनी ख्वाहिश और रस्म रिवाज के मुताबिक करना चाह रहे थे, वही रिश्ता अब सुन्नत के मुताबिक अंजाम दे दें। बस अपने घर से रस्म रिवाज का जनाजा निकाल कर इत्तिबाए सुन्नत नबवी में सादगी से अपनी बेटी का निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अरे चौधरी साहब, आप तो रहने दो, आप बड़े आदमी हैं, आपका खानदान भी बड़ा है, आपको जवाब देना भी मुश्किल होगा और किस किस को नाराज करते फिरोगे? हम तो किसी गरीब घराने की लड़की देख लेंगे। ला हौल बिला कुव्वत, हम इस गांव के चौधरी जरूर हैं, लेकिन इतने भी बेगैरत नहीं कि हमारे सामने हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका जिक्र किया जाए और हम कबूल न करें। और अपने रिश्तेदारों की नाराजगी से मुझे कोई नुकसान नहीं, लेकिन यकीनन मेरे लिए जवाब देना भारी पड़ जाएगा अगर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कयामत में सवाल कर लिया कि चौधरी, क्या तेरी बेटी मेरी बेटी फातिमा से ज्यादा कीमती थी? मैं चाहता था अपनी बेटी फातिमा का निकाह इतनी धूमधाम से करता कि फरिश्तों को भी बुला लेता, लेकिन मैंने सादगी को पसंद किया। तो इस चौधरी के पास क्या जवाब होगा? वाह चौधरी साहब, माशाअल्लाह, आपने तो दिल खुश कर दिया। इंशाअल्लाह आपकी बेटी का निकाह मैं खुद पढ़ाऊंगा और फ्री में पढ़ाऊंगा, कुछ फीस नहीं लगेगी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे पूरे समाज और माशरे को रस्म और रिवाज से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।